Good evening, students. Today I take up a new chapter from your English grammar book. Name of this chapter is the adjective. So firstly we know about that what is adjective, and we know about the definition of adjective. So adjective are a category of words that qualify or modify the sense of noun and pronoun too. Read the following paragraphs and try to figure out what role the enriched words play in it. Actually, an adjective is a word that describes or qualifies a noun or pronouns. Adjectives, जिसे हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, are a category of words. शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी श्रेणी है that qualify और modify, जो describe करती है, qualify करती है किसको? The sense of the noun or pronoun. pronoun और noun के sense को, उसकी विशेषता को बतलाती है, उसकी डिस्क्वालिटी क्वालिटी को दर्शाती है. तो ये किसका काम होता है? एडजेक्टिव का काम होता है. तो सबसे पहले इसका एडजेक्टिव का जो सीधा मतलब यही है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाना. फॉर द एग्जाम्पल, जैसे राम इज फैट. सो हेयर राम इज अ नाउन एंड फैट इज अ डिस्क्वालिटी और अ क्वालिटी ऑफ राम. तो यहाँ पे राम की विशेषता क्या बतलाई गई है कि राम फैटी है. ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या उसकी क्वालिटी या उसकी डिस्क्वालिटी को शो करना, यही एडजेक्टिव का एक मेन मोटिव है, एक मेन उद्देश्य है, एक मेन काम है. नाउ वी डिस्कस अबाउट समथिंग इज इन सर्कल इन योर बुक. A natural smile develops. A characteristic wrinkles around our eyes, but a crafty man smiles only on his mouth. True smiles are the act of the unconscious brain, which implies that they are the elementary. The photographers suggest their client to the pronounce cheese as this act pull back to the genometric major muscles. Nevertheless, a false smile is created as an imperfect picture is taken. When is a smile coy or natural? The spongy part of the eye between the eyebrows and ears. तो यहाँ पे आपका जो इनसर्कल है वो आपका एडजेक्टिव्स है. मतलब किसी चीज़ का नेचुरल फॉर्म में होना, दिस इज़ अ एडजेक्टिव. किसी के बारे में, किसी के कैरेक्टरिस्टिक को बताना, ये भी आपका एडजेक्टिव है. और किसी के बारे में बात हो रही है, आइज़ इज़ अ नॉर्मल, लेकिन हमारी आइज़, तो ये हमारी आइज़ से रिलेटेड है, यानी हमारा पोजेशन है, तो दिस इज़ अ एडजेक्टिव. तो जितना आपका इनसर्कल है, दिस इज़ अ एडजेक्टिव, फॉल्स इज़ अ एडजेक्टिव, जेमेटिक इज़ अ एडजेक्टिव्स, इम्परफेक्ट इज़ अ disquality of the adjective, spongy is a quality of the adjective, natural is also a quality of the adjective. तो जितना आपका encircle material है, ये सब आपका adjective में included है. Now we discuss about the encircles matters. Moves inwards and the end of the eyebrows dip to the some extent. तो here the sum is a quantity actually, है ना. तो ये भी आपका adjectives है. Positive होना, this is a quality and this is also adjectives. Left side, right side, this is a quality. That which side, तो ये दोनों ही आपकी quality में included है. False is a false facial emotions. So facial emotions, तो false facial emotion, facial is a adjective. So having read this above paragraph, you must have the realize that in the sentence first, the natural adds to the sense of the smile, कि smile जो है उसकी natural है, तो this is a quality, this is a adjective. Characteristic qualifies wrinkles, our relation to the eyes, and crafty qualifies man and his act to the sense of mouth. In the second sentence, true qualifies the smiles, and unconscious says something about the brain, and involuntary tells something about the
smiles again. In third sentence, there qualifies clients. This is the adjectives, and dramatic and measure tells the qualities of the muscles. So here in the sentence fourth, false tells something about smiles. What says something about smile? False. So this is a adjective. Imperfection and imperfect is a adjective. Copy, natural, spongy, positive, facial, left, right, whichever, whatever shows here in the circle, everything is including in the adjectives. Now we turn to the kinds of adjective. Here the 8 types of kinds of adjectives. The first is a qualitative, quality of adjectives. Quantitative, you can say that the quantity of adjective. Possessive adjective, demonstrative adjectives, numerical adjectives, numeral number of adjectives, emphatic adjectives, interrogative adjectives and exclamatory adjectives. तो यहाँ पे आपके 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जिनको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So firstly, we discuss about the quality of adjectives. Qualitative adjective, the words which indicates the qualities or characteristic of noun preceding them the term as the qualitative adjectives. मतलब qualitative adjectives जिसको आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा, it's mean the quality. Qualitative words is making from the quality words. तो क्वालिटी जिसमें संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो किया जाए वो आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है. फॉर द एग्जाम्पल, वी वर सर्व द डेलिशियस फूड. डेलिशियस फूड, तो जो डेलिशियस है वो फूड की क्वालिटी है. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. सो मॉर्निंग में प्लीजेंट होना, मॉर्निंग का प्लीजेंट होना, तो प्लीजेंट इज़ अ क्वालिटी. द काइंड मैन, मैन का काइंड होना, तो काइंड इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ मैन. द ऑनेस्ट पुलिस मैन, पुलिस मैन का ऑनेस्ट होना, दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ पुलिस मैन. सो हेयर द ऑनेस्ट इज़ अ क्वालिटी ऑफ पुलिस मैन. So this is a quality of adjective. Now we turn to the quantitative adjectives and adjectives of quantity. Quantitative adjectives are the words which indicates the quantity of the noun they qualify. नाउन की क्वांटिटी को शो करना, उसका मेजरमेंट को शो करना, जो उसके पास मटेरियल है उसकी क्वांटिटी को शो करना, ये जो भी उसके पास मेटल है, मटेरियल है, थिंग्स है, उसको मेजरमेंट करना, उसकी क्वांटिटी को एसेस करना, ये काम होता है क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का. एंड इंडिविजुअल नीड्स 10 liters ऑफ वाटर. तो 10 liters, this is a measurement of water. So 10 liters is a quantity of adjectives. There was a lot of noise on the platform. तो noise, noisy, how much noise? A lot of noise. So a lot of is a quantity of noise. A little knowledge is dangerous. Which type of knowledge is dangerous? A little knowledge. So a little knowledge is a quantity of adjectives. He did not have the sufficient money to invest in the venture. He did not have sufficient money. How much he have the money? Sufficient money. So sufficient is a quantity of the adjectives. And now we turn into the third quality of the adjective is the possessive adjectives of possessions. पोसेशंस मीन्स होता है किसी चीज़ को धारण करना, किसी चीज़ की स्वामित्वता होना या किसी चीज़ की ओनरशिप होना, तो यही आपका कहलाता है पोजेसिव. अगर किसी चीज़ में पोजेशन है तो इट्स मीन कि वो चीज़ मेरी है, अगर किसी चीज़ में पोजेशन नहीं है तो इट्स मीन कि वो चीज़ मेरी नहीं है. तो जो पॉसेसिव होता है इट्स मीन होता है कि इसका जो अधिकार है, इस पर जो अधिकार है वो मेरा है. तो जिस एडजेक्टिव में हम अधिकार या संबंध या रिलेशन को शो करते हैं उसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में इंक्लूड करते हैं. मीन्स पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच इंडिकेट द ownership of possessions of nouns they qualify. For the example, it is your fault.
Whose fault here? Your fault. तो your is a possessive. It is your fault. तो यानी ये जो गलती हुई है ये तुमसे हुई है, तो इस गलती का रिलेशन डायरेक्टली तुमसे है, तो दिस इज अ पॉजेसिव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. आई एम थैंकफुल टू माई फ्रेंड. मैं थैंकफुल हूँ किससे? अपने फ्रेंड से. माई फ्रेंड, तो माई जो इंडिकेशन है वो मेरे दोस्त का है, तो ये हमारा पॉजेसिव है. ट्रुथ ऑलवेज मैनिफेस्ट इट्स स्ट्रेंथ. तो इट्स स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ? इट्स मतलब खुद उसकी. दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडी. तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट, उसको कॉन्सेंट्रेट किस में करना चाहिए? देयर स्टडीज़ में, खुद की स्टडीज़ में. तो यहाँ पे स्टडीज़ से कनेक्ट किसको किया गया है? दे को स्टडीज़ से कनेक्ट किया गया. इट्स मीन कि दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़. इन द सेंटेंस above the highlighted words your, my, his, its, their indicate the position of the respective noun, fault, friend, valuable, advice, strength and studies. Hence they are the possessive adjectives. Adjectives means your, mine मतलब तुम्हारा, मेरा, उसका, its, उसका, उनका. This is types of the adjectives. Now we turned into the fourth demonstrative adjectives. So what is the types of demonstrative adjective and adjective of demonstrations? Now we discuss about the demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are the word which qualify noun by the pointing towards them. मतलब किसी चीज़ को point out करना कि ये चीज़ उसकी है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ यहाँ रखी है, जिसमें हम this, that, those टाइप का यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं demonstrative adjectives. बेसिकली हम देखते हैं कि demonstrative adjective में जिसको हम संकेत देते हैं, you can say that एक सिग्नल देना, एक साइन देना किसी चीज़ में, किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना कि ये चीज़ रखी है, यहाँ रखी है, ये चीज़ उसकी है और उसने वो ले गया. तो किसी चीज़ में इसकी, उसकी, यहाँ, वहाँ, ये जितना इंडिकेशन है ना, ये सब आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत आता है. तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी थिंग को इंडिकेट करने के लिए कोई सिग्नल देते हैं, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. डेफिनेशन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव इट्स एडजेक्टिव इज दैट द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. लाइक दैट, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, दिस टाइप्स ऑफ वी कैन यूज दैट इन द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो देखिएगा कि सेंटेंस में जहाँ पे आपको दिस, दैट, दोज का वर्ड मतलब जो सेंटेंस की शुरुआत में या बीच में यूज होता है, दिस, दैट, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है. जिस सेंटेंस में आपको दिस, दैट हो और उसमें आपको सर्च करना हो कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या ये क्या है, तो आपको जब समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें मोस्टली बेसिकली हम दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं. अब हम चलते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. Adjective of number. What is the type of adjective of number? This type of an adjective shows the number of a person or a things. 1, 2, 3, 4, second, third, no, few, all, some. This type of the example of the number of adjectives. Means numeral adjectives are word indicating the number of the frequency of the noun. किसी भी संज्ञा की मात्रा किसी भी संज्ञा की नंबर को दर्शाना, उसके अंकों को दर्शाना, उसका जो नंबरिंग क्या है स्टेटस, उसको दर्शाना, ये आपका न्यूमरल या एडजेक्टिव्स और नंबर में इंक्लूड होता है. जहाँ पर नंबरिंग आए, जैसे कि 12 month comprise a year and K is the 11th letter of the English alphabet. तो 11th, 12th, 2nd, 4th, this is a number. तो ये जिसमें नंबर इंडिकेट करे वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंडर आएगा? न्यूमेरल एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. Now in this example, the clotted above the highlighted words 11th, 12th, 2nd, 4th indicate the frequency of an order, the respective noun, that letter, month, Saturdays and limbs. Therefore, they are. Because I can't read it,
सो आई एक्सप्लेन इट ओरली मीन्स कि जो नंबर को दर्शाए, जो नंबरिंग पोजीशन मटेरियल नंबर स्टेटस को आपको शो करे, वो आपका न्यूमेरल या नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स में आता है। ये मैंने अभी आपको बताया। अब हम चलते हैं एम्फेसिस एडजेक्टिव की तरफ। व्हाट इज अ टाइप ऑफ एम्फेसिस एडजेक्टिव? एम्फेसिस एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एम्फेसिस एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो एडजेक्टिव्स द वर्ड्स विच इज एम्फेसिस और अ नाउन दे क्वालिफाई। मतलब types of adjective is used to emphasize the noun and the modified are called the emphasizing qualities or emphatic adjectives। मतलब जिन adjective का जो यूज़ होता है वो किसी noun पर एक विशेष तरीके का प्रेशर डालता है, उसको प्रेशराइज करता है, एंड तब emphasizing adjectives को हम आउटसाइड उसको शो करते हैं। जब हमको एक प्रेशराइज्ड टाइप का एक सेंटेंस दिखाई देता है कि उसके बारे में बताया जा रहा है जो अंडर प्रेशराइजेशंस हैं, उनको हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स के अंदर लाते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं बलघात सूचक आप हिंदी में बोल सकते हो, जिसको हम एम्फेसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं या एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूजेस टू द एम्फसाइज द नाउन्स दे मॉडिफाई आर कॉल्ड द एम्फेसिस एडजेक्टिव फॉर अ एम्फेटिक एडजेक्टिव। उदाहरण के लिए फॉर द एग्जांपल जैसे ओन, वेरी, स्मॉल, वेरी, सेम, ये आपके एडजेक्टिव्स इस एडजेक्टिव्स में आते हैं। जैसे द सेम स्टोरी वॉज टोल्ड बाय द ग्रैंड मदर एंड टू बी एबल टू द differentiable between good and bad is a very objective of the education and apply your own mind। तो मतलब some, very, own, therefore इस तरीके के जितने भी वर्ड्स आते हैं वो आपके एम्फेसिस एडजेक्टिव्स में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है क्या यूज़ होता है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क होता है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में भी यही होता है। एक तो WH से हमारे कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जैसे हुज, विच, वॉट, और जो भी नहीं भी यूज़ होते हैं तो जैसे हाउ मच, बाय वॉट, ये आपको दिया गया है, वॉट, विच, हाउ मच, हुज। तो ये आपका जो क्वेश्चनिंग टाइप्स ऑफ द वर्ड्स होते हैं ये आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, जिनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मोस्टली टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज टू आस्क द क्वेश्चनिंग। ओके, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज टू आस्क द क्वेश्चंस इन द सेंटेंस आर कॉल्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस सेंटेंस में हमको प्रश्नवाचक जैसी कोई स्थिति लगे कि यहाँ प्रश्न पूछा गया एंड आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस वी पुट द क्वेश्चन मार्क एट लास्ट, तो वो हमारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, जैसे फॉर द एग्जाम्पल विच मैन इज ब्लैक एंड हुज बुक इज दिस एंड whose brother is a colonel in the army and which colors symbolize the courage। तो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऑफ इंट्रोगेटिव है या एडजेक्टिव्स ऑफ इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें हमारा जो एक्सप्रेशंस होता है, जिसमें एक सडनली आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन देना होता है कि आपको कोई चीज़ तुरंत पता चलो और आपका रिएक्शन क्या हो। तो जो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है उसमें भी यही है। जैसे कि what called an exclamatory adjective is used for the adjective in a exclamatory sentence। जब हम किसी चीज़ में what का इस्तेमाल करते हैं ना बहुत फोर्सफुली, what एडजेक्टिव की तरह, वो हमारा एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंक्लूडेड होता है। मतलब जिसके बारे में हमें पता ना हो और एकदम से हमारे पास वो कोई न्यूज़ आ गई हो और हमारा सडनली हमारा जो रिएक्ट होता है व्हाट, तो विच दिस इज काउंट इन द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। जैसे व्हाट अ मास्टरपीस, किसी को हमने इंडिकेट किया, एंड व्हाट अ नॉनसेंस इज दैट, या व्हाट एन आइडिया। तो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस इंक्लूडिंग इन द एक्सक्लेमेटरी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये हमारे जितने भी उसके एडजेक्टिव्स के पार्ट हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसमें से कुछ एडजेक्टिव्स की क्वालिटी एंड एक्टिविटीज़ हैं जो आपके बुक्स में दी हुई हैं, इनको मैं डे आफ्टर टुमारो डिस्कस करूँगी और आपको सॉल्यूशन के साथ भेजूँगी। मैं कुछ होम असाइनमेंट्स भी आपको दूँगी और उस होम असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप करना है। जितनी एक्टिविटीज़ हैं इन सबको मैं इसका सॉल्यूशन मैं डे आफ्टर टुमारो सेंड करूँगी। इसके बाद आपका कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, तो वो आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है बच्चों, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया है। उसको लेंथी प्रोसेस में हम आगे डिस्कस करेंगे और
एडजेक्टिव में हम केवल एडजेक्टिव की डेफिनेशन और एडजेक्टिव्स के काइंड का एक जो डायग्राम है उसको हम अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले आज काम क्या करेंगे, एडजेक्टिव से रिलेटेड जो आपके जो डेफिनेशंस हैं उनको राइट डाउन करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। आफ्टर दैट यू विल बी मेक अ डायग्राम ऑफ 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स लाइक दिस। All right, of quantitative and qualitative, possessive, demonstrative, numeral, emphatic, interrogative and exclamatory, these types of 8 type of adjectives। तो इस तरीके का आपको डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है और उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी डेफिनेशंस दी हुई है, एडजेक्टिव्स आर द कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट क्वालिफाई मॉडिफाई द सेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ये आपको राइट डाउन करना है कॉपी में। एंड डे आफ्टर टुमारो वी विल बी डिस्कस द एक्सरसाइजेस विच इज रिलेटेड फ्रॉम योर बुक।